بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اب اختتام پذیر ہونے کو ہیں، 1 یا 2 روزے باقی ہیں۔ دعا ضرور کیجیے گا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور یہ ضرور دعا کیجیے گا کہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک اچھی لیڈرشپ دے دے، ایسی لیڈرشپ جو صرف پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، پاکستان کا سوچے، پاکستان کے مفادات کا خیال رکھے، اور پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اتحاد کے ساتھ آگے لے کر بڑھے۔ ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عطا کرے تو ہم بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ترقی یافتہ مہذب ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز ہمارے ہاتھ میں یہ کشکول ہی رہے گا، یہ نحوستیں ہی رہیں گی جب تک ہمیں اچھی لیڈرشپ نہیں ملتی۔ اور خاص طور پہ ایک ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جن کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں، ہماری فوجی قیادت، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فوجی قیادت کو بھی تھوڑا سا اس بات کا احساس دلائے کہ یہ جو بڑے بڑے یو ٹرنز لینے کا جو ہے وہ ہر 5 سال کے بعد ایک نیا بیانیے کے ساتھ آتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو بھی پاکستان اور صرف پاکستان کا سوچنے کا موقع دے، اور وہ بھی اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی طاقت اور ذاتی خمار سے ذرا بلند ہو کر سوچیں، اور وہ بھی سوچیں کہ پاکستان بھی ہمارا ہے، پاکستانی قوم بھی ہماری ہے، اور مل جل کر کیسے آگے رہنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ طاقت کے خمار میں صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو صرف دیکھنا ہے، ادھر سے بھی خاص طور پہ اس کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور رمضان المبارک کے بالکل آخری دنوں میں اچھی خبریں آئی ہیں، اور عید سے پہلے اچھی خبریں آئی ہیں، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کافی گھروں میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں، اور یہ جو 9 مئی کا ایک عذاب تھا، وہ آہستہ آہستہ اس عذاب سے چھٹکارا ملتا جا رہا ہے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، اور ہم آگے بڑھنے کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں۔ بہرحال خبریں کچھ ہیں جناب، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کل چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروانا چاہیے گورنمنٹ، جبکہ خیبر پختونخوا کا ابھی الیکشن نہیں ہوا۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن نے روک دیا تھا۔ اب آئینی، قانونی اور سیاسی اعتبار سے جمہوری طریقے سے ایک پورے کا پورا یونٹ ہے، فیڈرل یونٹ ہے خیبر پختونخوا، یعنی کہ 4 صوبے ہیں، 4 صوبے میں سے ایک صوبے کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہے، اور نہ صرف نمائندگی نہیں ہے بلکہ نومنتخب اراکین بھی نہیں آئے۔ تو ایسے میں جلد بازی میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروانا ایک خلاف آئین ہے، خلاف قانون بھی ہے، اور جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور یہ ایک کمزور وفاق کو کمزور کرے گا، صوبوں میں احساس محرومی ہوگا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ میں بھی یہ موقف اختیار کیا گیا، ہائی کورٹ اور ادروائز بھی پولیٹیکل نیریٹو پارلیمان میں بھی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا PDM-1 کی گورنمنٹ نے، کہ جناب یہ تو دیکھیں ایک صوبے میں الیکشن ہو گیا اور دوسرے صوبے میں 2 صوبے باہر ہیں، بلوچستان باہر ہے، سندھ اسمبلی باہر ہے، تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، تو اس طرح تو بہت احساس محرومی پیدا ہوگا، تو باقی صوبے کیا سوچیں گے؟ اگر پنجاب میں ہو گیا تو سندھ کیا سوچے گا اور بلوچستان کیا سوچے گا؟ تو اس وقت یہ نیریٹو لے کر آئے تھے، لیکن آج جو ہے وہ نیریٹو ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آج اس لیے ختم ہوا ہے کہ آج فائدہ ان کو اس میں ہے کہ آج الیکشن ہو جائے، اور خیبر پختونخوا سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، تمام کے تمام سینیٹرز موسٹلی وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے منتخب ہونا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بغیر ہی ہم الیکشن کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو سنا اور اس کے بعد آرام سے اس کو محفوظ کر لیا، اور یہ فیصلہ اناؤنس نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ آج اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، اگر آج اناؤنس کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اب اگر یہ کل اناؤنس کیا جاتا ہے تو کل جو ہے وہ ڈویژن بینچ کل فوری طور پہ اس کی سماعت نہیں ہو سکے گی، اور اس کو روکا نہیں جا سکے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈویژن بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اگلے دن چھٹی ہو جائے گی، یعنی کہ اناؤنس کر دی گئی ہیں چھٹیاں 10 سے 13 تک اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں بھی، تو لہٰذا یہ ایک اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو کی جا رہی ہے، اور کیونکہ
जरदारी साहब जो हैं वो गिलानी साहब को हर सूरत में चेयरमैन सेनेट के तौर पे लाना चाहते हैं। अब देखना है कि इस बारे में आगे क्या फैसला होता है, लेकिन ये है आइन और कानून के खिलाफ है, क्योंकि उस वक्त कुछ और बयानिया था, आज कुछ बयानिया और है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट केस है जी, वो है अदालती अहकामात थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए जेल रूल्स के मुताबिक, लेकिन जेल रूल्स के मुताबिक भी उनकी अभी तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। और वो अलकादर ट्रस्ट पे अलकादर ट्रस्ट की समात होती है, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे कमरा अदालत में ये इसको मुलाकात का नाम उन्होंने दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना था, क्योंकि मुलाकात का मतलब अलग मुलाकात होती है, पेशी पे मुलाकात जो है वो मुलाकात नहीं तस्वर की जाती। तो इसलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला दोबारा आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे और उनके सामने ये मामला दोबारा टेकअप किया गया, तो उस पर रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मांग के कहा गया कि इसकी हर सूरत में मुलाकात करवाई, क्योंकि कहा गया था कि ईद के मौके पर पूरा एक दिन मुकर्रर किया जाए, मियां बीवी के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए और इस पे जेल कवानीन भी इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। अलबत्ता कल जो है वो इद्दत केस का मामला है। अगर इद्दत केस का कल फैसला हो जाता है तो कल बुशरा बीबी जो है वो रिहा तस्वर होंगी, और क्योंकि उनके खिलाफ कोई और केस है नहीं है और उनको सजा सुनाई गई है, तो तोशाखाना में भी सुनाई गई थी, वो सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। अब इद्दत वाला केस बाकी है, तो इद्दत का केस कल टेकअप किया जाएगा। कल देखते हैं सरकारी वकील तशरीफ लाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली तारीख पर सरकारी वकील भी नहीं आए थे और खावर माने का जो कि मुद्दई थे वो भी नहीं आए थे। जब सजा होनी थी तो वो बिल्कुल पेश थे, बहुत ज्यादा फुर्तियां थी, लेकिन अब चूंकि अपीलें हैं और सजाएं मुअत्तल होनी है, सजाएं खत्म होनी है, अब वो तशरीफ नहीं ला रहे, न उनके वकील तशरीफ ला रहे हैं। तो एक दूसरी बात यह जी कि एक और बात कि मौसम जरा तब्दील होता जा रहा है, और वो है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का आज केस था और फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम अदालत में पेश नहीं हुए और बगैर कार्रवाई के मुअत्तल कर दिया गया। और जूनियर वकील ने फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, दरखास्त मंजूर कर ली गई और ये बगैर कार्रवाई के 11 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी ये है, महीना चल रहा है जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मौसम बदलता है तो फिर तारीखें भी इसी तरह ही हो जाती हैं, तो मौसम बदल चुका है, इसका मतलब ये है। दूसरी तरफ कुछ और अब आते हैं मेन खबर की तरफ जी। बड़ी खबर जो है वो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि खास तौर पे जो मामला है 9 मई की खवातीन खास तौर पे जो जेर हिरासत है उनके बारे में। तो चेयरमैन सेनेट का मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट के इंतखाबात को चैलेंज किया था, वो शोएब शाहीन साहब एडवोकेट थे और सैफुल्ला नियाजी थे, सैफुल्ला अबड़ो थे, डॉक्टर जरगाट, सेनेटर फलक नाज, ये मौजूद थी। ये सेनेटर्स हैं, इन 5 सेनेटर्स ने मुतफिका तौर पर इसको चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि कल इलेक्शन है, अगर इलेक्शन रोक दिया गया तो बेहतर होगा, लेकिन इलेक्शन दलाइल सुन लिए चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने, और दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और उन्होंने कहा कि देखना होगा कि इलेक्शन हम रोक सकते भी हैं या नहीं रोक सकते। तो इसके ज्यादा इम्कान तो यही है कि इलेक्शन नहीं रोका जाएगा, लेकिन इस पे जो शोएब शाहीन साहब ने आर्गू किया था, उन्होंने कहा था कि कासिम सूरी साहब ने असेंबली तोड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कासिम सूरी साहब ने जो है वो की रूलिंग थी, उस रूलिंग को भी वापस किया था और असेंबली तोड़ दी गई थी, उस असेंबली तोड़ने के इकदाम को भी वापस कर दिया गया था। शोएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि कासिम सूरी साहब का केस का हवाला दिया था और जो असेंबली तोड़ दी गई थी रूलिंग देकर, रूलिंग दी गई थी और तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई थी, तो उस पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है, तो इसलिए आप भी ये काम कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये हम देखना होगा, लिहाजा ये अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है और क्या होता है। दूसरी जानिब जी आगे एक बड़ी खबर, वो खबर है कि सूरत हाल कुछ इस तरह से है जनाब कि एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जजिस का मामला है और सबूत तशरीफ ला रहे हैं, सबूत ज्यादा से ज्यादा जमा हो रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस खत के अहम किरदार जो हैं, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी हैं, जहांगीरी साहब भी हैं, सरदार इजाज इसाक भी हैं,
जिनके साथ जो कुछ बीती वो उन्होंने बयान किया था। उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी हैं, लेकिन उन 6 जजेस में से एक जज को कर लिया गया जी, निशाने पर रख लिया गया है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। उनको अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त दी गई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वकास मलिक ने यह दरखास्त दायर की है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया और साथी जजों को भी साथ मिलाया, फौरी तौर पर उन्हें काम करने से रोका जाए। अब ये एक हैरत अंगेज बात है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, और खत लिखने के बाद 6 जजेस ने खत लिखा और उसको टेकअप कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया है, और इससे पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया था। फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और उन पे दबाव बढ़ाया जा रहा है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये अब दरखास्त दायर की गई है। तो मैं समझता हूँ कि देखना है कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस पे कैसे एक्ट करते हैं, और कि क्या कोई जल्दी दिखाते हैं या नहीं दिखाते। देखिए, इंतजार करें, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा फुर्तियां दिखाई गई थी जब ये खत लिखा गया था, और फौरी तौर पे डिनर पे भी बुला लिया था, और डिनर पे अगर ये सब मान जाते ऑनरेबल जजेस, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई ऐसा काम, ऐसा एक्ट, ऐसा रद्द अमल नहीं आना था। लेकिन चूंकि जजेस नहीं माने और उन्होंने कहा कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है, और इसलिए वो इससे पीछे नहीं हटने के लिए तैयार, लिहाजा आप हमारा केस जो है वो परस्यूट करें। तो ये केस उन्होंने परस्यूट करने की बात की थी। लेकिन देखिए क्या होता है। अब एक और बड़ी खबर है जी, और वो है कि जो हैं 20 अफराद जो हैं वो फौजी अदालतों से रिहा कर दिए गए हैं। फौजी तहवील में थे, इनको रिहा कर दिया गया है 20 पाकिस्तानी शहरी। उनमें मोहम्मद इदरीस, उनका पहले से जिक्र आ चुका है, और उसमें एक हैं जी रावलपिंडी से मोहम्मद इदरीस को रिहा किया गया है, असवद राजपूत को, नादिर खान को, शहरयार जुल्फकार को, लाल शाह को, अब्दुल रहमान साहब को, मोहम्मद फैसल को, यासिर अमन को, यासिर अमन या यासिर अमान, यासिर अमान को किया गया। लाहौर से फैसल इरशाद हैं, हसन शाकिर हैं, अब्दुल्ला अजीज हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो हैं मोहम्मद अनस, गुजरांवाला से मोहम्मद अनस हैं, अब्दुल जब्बार हैं, अब्दुल सत्तार हैं, मोहम्मद राशिद हैं, राशिद अली हैं, उमर मोहम्मद हैं, और कलमत खान हैं, और इजाजुल हक हैं, ये दीर से, मर्दान से, शाहजेब हैं। इन शहरियों को रिहा कर दिया गया है। 9 मई के इल्जाम में ये गिरफ्तार थे, और ये मिलिट्री ट्रायल 9 मई का उन्वान दिया गया है, और ये कस्टडी में थे जी, और 10 महीने और कुछ दिन ये कस्टडी में रहे, और 10 महीने 5 दिन कस्टडी में रहे, 10 महीने 6 दिन कस्टडी में रहे, और इनको जो सजाएं सुनाई गई थी वो 1 साल की सजा सुनाई गई थी जी, एक साल की सजा सुनाई गई थी। तो इनको रिहा कर दिया गया है तकरीबन 10-11 माह के बाद। ये सिचुएशन आई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ईद से पहले जिन लोगों ने रिहा होना है उनको रिहा कर दिया जाए, तो इन लोगों को अब रिहा कर दिया गया है। तो इसमें एक और काम भी कहा गया है जी कि आर्मी चीफ ने बाकिया सजा इनकी मुआफ कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि इनको सजा हुई है 1 साल, तो ये तो 11 महीने तो वैसे ही काट चुके हैं, तो उसके पीछे फिर माफी वाली कौन सी बात है। 10 महीने 8 दिन गुजार चुके हैं, 10 महीने 5 दिन गुजारे हैं, 10 महीने 6 दिन गुजारे हैं, 10 महीने 8 दिन, 10 महीने 8 दिन, 9 महीने 26 दिन, तो ये सारे 1 साल की सजा इनको सुनाई गई थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए, लेकिन ये अपने घरों में पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला इनको मुबारक करें। लेकिन सनम जावेद और आलिया हमजा की हालत खराब है, और उनको काफी तंग किया जा रहा है सरगोदा जेल में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।